Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our online session. It's our 8th English lecture. I hope that you all are fine and enjoying your online session really well. Dear students, in the last lecture we did the reading of the poem The Echoing Green. Along with that we did its question answers. So today we are going to do two things, that is the work page of the poem The Echoing Green. Also we will do comprehension from the reader. It's chapter number 1. Let's move to the work page first. It's on your books, page number 49. You can see on your books. From working with words, the part 1 is put these words into alphabetical order and write definition of these words. Dear students, some words are given here. You can see we have to do 3 parts related to these words. First of all, we have to write it into alphabetical order. Secondly, we have to give their definitions. And thirdly, we have to make sentences of these words. Put your pencils in your hands so that you can solve with me. First of all, we have to write these words into alphabetical order. You can see the words with numbering. It shows their alphabetical order. Along with these, there are definitions written in front of the words. Let's start word by word. The first one is dawdle. It means slowly wasting time, यानी वक्त ज़ाया करना, बेकार फिरना. मैं आपको हर वर्ड की डेफिनेशन उर्दू में भी बता देती हूँ so that it becomes easy for you to learn the meaning and along with its sentence. Next is hobble. As if old or lame. It means रुक रुक कर चलना या अटक अटक कर चलना. Limp as if lame, लंगड़ा कर चलना. March in a military manner means एक जैसे कदमों के साथ चलना. Pace means with regular steps, कदम कदम चलना. Plod slowly and laboriously. It means कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ़ के साथ चलना. Ramble means for pleasure, सैर करना. Roam walk without purpose, बगैर किसी मकसद के फिरना. Next is shuffle. Walk with dragging one's feet, पाँव घसीट कर चलना. Slouch means walk lazily, यानी झुकना, झुक कर चलना. Next is stride. Walk with long steps, लंबे कदम उठाना. Next is stroll. Walk in a leisurely way, चहलकदमी करना या सैर करना. Strut means walk in a proud way, अकड़ कर चलना. Toddle walk like a small child, किसी छोटे बच्चे की तरह चलना. Trudge walk as if wearing heavy boots, ऐसे चलना कि जैसे आपने बहुत कोई हैवी बूट्स पहन रखे हों या भारी कदमों के साथ चलना. एंड द लास्ट वन इज़ वेडल. वॉक लाइक अ डक, मटकते हुए चलना. आई अगेन एक्सप्लेन यू दीज पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. ये जो नंबरिंग वर्ड्स के साथ की गई है इट शोज़ देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. साथ में डेफिनेशंस दी गई हैं वो आपने लिखनी है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा ये है, वी हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. दैट इज़ देयर. नाउ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन learn these sentences very easily. First one is again dawdle. Don't dawdle, we are already late. वक्त ज़ाया मत करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं. इट मीन्स के जल्दी से चलो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं. होबल, आई हर्ट माई फुट एंड हैड टू होबल होम. मेरा पाँव ज़ख्मी हो गया है सो मुझे अब घर रुक रुक के जाना होगा या अटक अटक कर चल के जाना होगा. डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट ऑल दीज वर्ड्स मीनिंग वॉक. इन सब वर्ड्स का मीनिंग वॉक है बट इन अ डिफरेंट वे. ओके,
नेक्स्ट वन इज़ लिम्प, ही इज़ लिम्पिंग ड्यू टू इंजरी, वो किसी चोट या ज़ख़म की वजह से लंगड़ा कर चल रहा है। मार्च, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मार्च टूवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफिस, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ मार्च करते हुए जाएं। पेस, ही वॉज वॉकिंग एट अ नॉर्मल पेस, वो एक जैसे कदमों के साथ या कदम कदम चल रहा था। नेक्स्ट वन इज़ प्लॉड, दे हैड टू प्लॉड वेरीली ऑन अप द हिल, वो तकलीफ़ के साथ पहाड़ी पर चढ़ रहे थे या उन्हें चढ़ना पड़ा। रैम्बल, इट मीन्स आपको मैंने बताया था फॉर प्लेयर यानी सैर करना। आई लाइक टू रैम्बल थ्रू द फील्ड्स, मुझे फील्ड्स में या खेतों में सैर करना अच्छा लगता है। 8th वन इज़ रोम, वाई आर यू रोमिंग हेयर एंड देयर, तुम इधर उधर क्यों बेमकसद फिर रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ शफल, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक क्वाइटली डोंट शफल योर फीट, इसका मतलब ये था पाँव घसीट के चलना, तो अगर तुम खामोशी से चलना चाहते हो तो अपने पाँव मत घसीटो। स्लाउच, समटाइम्स वी स्लाउच अराउंड इन द फील्ड्स, कभी कभार हम झुक कर यानी अनवांटेडली चलते हैं फील्ड्स में, दैट मीन्स स्लाउच, लेजीली। स्ट्राइड, इन वन शॉर्ट स्ट्राइड ही रीच द डोर, एक ही कदम में वो कहाँ तक पहुँच गया, दरवाजे तक। स्ट्रॉल, आई स्पेंड माई फ्री टाइम स्ट्रॉलिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, स्ट्रॉल मीन्स चहलकदमी करना, कि मैं अपना फ्री टाइम गलियों में चहलकदमी करके गुजारता हूँ। नेक्स्ट वन इज स्ट्रट, एज ही वन द कंपटीशन ही बिगैन हिज स्ट्रट टू द विनर्स सर्कल, जैसे ही उसने वो कंपटीशन जीत लिया वो अकड़ कर विनर्स यानी जो जीते हुए लोग थे उनके सर्कल की तरफ जाने लगा। टॉडल, द बेबी हैज़ बिगन टू टॉडल अराउंड द हाउस, बच्चे ने घर में टॉडलिंग शुरू कर दी है। टॉडल आपको पता है बच्चों की चाल। ट्रज, आई वॉज ट्रजिंग थ्रू द स्नो, ये मैंने आपको बताया था, ट्रज मीन्स भारी कदम रखना, स्नो में ऐसे ही चलते हैं जैसे he was wearing very heavy boots. Waddle, in the evening, ducks waddle up to the front door to be fed. शाम के वक्त डक्स, ये उनकी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वॉक है, उनकी मटकते हुए चलना, वो ऐसे चलती हैं फ्रंट डोर की तरफ ताकि उनको खाना दिया जा सके। Dear students, this was all your working with words. Now move to the next part, that is you can see on your books page number 49, punctuation. A comma is used between the items in a list. हमने पंक्चुएशन में आज जिस चीज़ को डिस्कस करना है दैट इज़ अ कॉमा। कॉमा कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमने एक लिस्ट में कुछ आइटम्स को डिस्टिंग्विश करना हो और यू कैन से कैटेगराइज करना हो, देयर वी यूज़ अ कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय बॉट टोमेटोज, कॉमा एप्पल्स, कॉमा pears, comma and bananas. This was your example. Related to this punctuation, the part is put commas in these sentences. The first one is, in his shop he sells nuts, bolts, screws, pins and paper. Now if you have understood the example, you can write commas in this sentence as well. Now you can see commas appearing on your screen. Yes, in his shop, comma, he sells, अपनी शॉप में वो क्या क्या बेचता है, नट्स, कॉमा बोल्ट्स, कॉमा स्क्रूज, कॉमा पिन्स, कॉमा एंड पेपर. Next one is, during the holidays he visited his brother, his uncle, his father's friend, his grandfather and his grandmother. Dear students, without commas you can find difficulty in reading the sentence. You cannot get the exact meaning of the sentence if there is no comma. So with commas you can understand its meaning very easily. Now again you can see commas appearing here in this sentence. I am going to read it again with commas. During the holidays, comma, he visited his brother.
यानी हॉलीडेज में उसने किस किस को विजिट किया है, हिज ब्रदर, हिज अंकल, कॉमा हिज फादर्स फ्रेंड, कॉमा हिज ग्रैंडफादर, कॉमा एंड हिज ग्रैंड मदर, यानी इन लोगों के यहाँ वो गया है ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज. The third one is the leaf floated with the current, whirled round and round, twisted over, stopped for a moment and then disappeared. Now you can see commas. The leaf floated with the current, comma, whirled round and round, comma, twisted over, comma, stopped for a moment, comma and then disappeared. ये सब किसकी description थी? Leaf के बारे में था, that we have distinguished with different commas. Next one is last one. The bells on the tree, streamers of every color hanging from the ceiling, balloons of all shapes, a large star, and millions of sparkling light completed the decoration in the hall. With commas you can see the bells on the tree, comma, streamers of every color hanging from the ceilings, comma, balloons of all shapes, comma, a large star, comma, and millions of sparkling lights completed the decoration in the hall. यानी इन सब चीज़ों ने हॉल में डेकोरेशन को कंप्लीट किया है. This was your part related to punctuation. Dear students, now move to next part. Make sentences using the words in each row. हर रो में हमें जो words दिए गए हैं, we have to make a sentence using the words. The first one is train, aeroplanes, bullock carts, bicycles and cars. Basically this part is related to the previous one. We have to use commas. Its sentence is, when we went to Lahore, comma, we saw trains, comma, aeroplanes, comma, bullock carts, comma, bicycles and cars. Next one is Pakistan, China, Malaysia, Indonesia, Thailand. And its sentence is, the Asian countries like Pakistan, China, Malaysia, Indonesia and Thailand are considered developing countries. It's a very easy sentence. Third one is hockey, cricket, golf, table tennis and squash. You know these are all games. Hockey, cricket, golf, टेबल टेनिस एंड स्क्वैश, इन सबको हमने कॉमा से डिस्टिंग्विश किया है. आर प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी की सारी गेम्स पूरी दुनिया में खेली जाती हैं. फोर्थ वन इज़ ब्लू शर्ट, ग्रे शर्ट, वाइट एंड ब्लैक शर्ट, येलो शर्ट. इट्स अप टू यू वेदर यू लाइक टू वियर अ ब्लू शर्ट. वो कहता है कि ये तुम्हारे पे है, तुम कौन सी शर्ट पहनना चाहते हो. अ ब्लू शर्ट, अ ग्रे शर्ट, कॉमा, अ वाइट एंड ब्लैक शर्ट, यानी वाइट और ब्लैक शर्ट पहनना चाहते हो, और येलो शर्ट या येलो शर्ट विद योर जीन्स, अपनी जीन्स के साथ. सो वी हैव यूज दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड वी पुट कॉमास to distinguish the list. This was all here related to punctuation. Commas we used. Now move to the next part, that is learning about language. It's again on your books, page number 49. Dear students, it's related to suffixes. I am going to explain you first what suffixes are. Then we will do its parts. Words can take the suffix ing. Suffix it means जो verb के साथ हम बाद में लगाते हैं. Prefix you know पहले वाला होता है, and suffix is added afterwards. बाद में जो हम addition करते हैं, that is called suffix. Here it is said that verbs के साथ ing suffix लगता है. Verbs with this suffix show that action is taking place at the time. और ing suffix हमें ये शो करता है कि कोई भी एक्शन उस वक्त हो रहा है. Many verbs form their past tense by taking the suffix ed. और past tense, अपना past tense में verbs के साथ कौन सा suffix ऐड होता है, वो होता है ed.
यू कैन से प्रेजेंट हमने अगर सुफिक्स ऐड करना है देन यू विल ऐड ing, एंड पास्ट सुफिक्स ऐड करना है देन यू विल ऐड ed. A number are regular and do not form the past tense in this way. For example, यही अगर आप ये नीचे एग्जाम्पल्स में देखें, laugh में हमने laughed बना दिया, so this is regular. और hit में hitted नहीं होता, the word is hit, past tense इसका hit ही रहता है, so this is irregular. Third one point is when either ing or ed is added to a verb of a singular short syllable the spelling changes. It's very clear कि जब वो कहता है ing या ed हम एडिशन करते हैं तो स्पेलिंग्स में चेंज होता है. Add the suffixes ing and ed, watch out for the irregular. अब हमने ये भी बताना है कि irregular कौन सा है. ऑब्वियसली जिसका पास्ट वर्ब सिंपली ed लगने से बन जाएगा वो रेगुलर होगा, और जिसका पास्ट वर्ब ed लगने से नहीं बनेगा वो आपका इरेगुलर होगा. लाफ, द फर्स्ट वन इज़ लाफ, लाफिंग एंड लाफ्ड. हमने दोनों लगाने हैं ing एंड ed. सो यू कैन से द फर्स्ट वन इज़ रेगुलर वन. स्टॉप, स्टॉपिंग, स्टॉप्ड. हिट, हिटिंग, हिट. इसमें हिटेड नहीं होता इसलिए दिस इज़ इरेगुलर. बॉक्स, बॉक्सिंग, बॉक्स्ड. कैच, कैचिंग एंड कॉट, सो दिस इज़ ऑल्सो इरेगुलर वन. थिंक, thinking, thought, this is also irregular one. Fix, fixing, fixed. Run, running, ran, this is also irregular one. Plan, planning, planned. Boil, boiling, boiled, these are all regular ones. Now move to next ones. Sit, sitting, sat. Now you can see sat is irregular one. Post, posting, posted. Flip, flipping, flipped. Ship, shipping, shipped. Join, joining, joined, these are regular ones. Fatten, fattening, fattened. Pay, paying, paid. Now you can see pay जो है वो PAY ED नहीं होता बल्कि इसमें स्पेलिंग इसकी चेंज हो रहे हैं PAID, so this is irregular one. Chat, chatting, chatted. Place, placing, placed. Last one is trap, trapping, trapped. It's a very easy part. I again repeat, इसमें आपने suffix लगाना था ing and ed. ing प्रेजेंट को शो करता है एंड ed पास्ट को शो करता है. जो सिंपली ed लगाने से वर्ब्स पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ रेगुलर वंस. और जो पास्ट वर्ब्स ed लगाने से नहीं बनते, दैट आर irregular ones. Now move to our next part, that is comprehension. I told you that we are going to do a comprehension passage today. Before doing the passage, first of all I will tell you about the rules for comprehension passages. Dear students, in class 5 you have already done this work. Here is a sort of revision for you. Before answering unseen passages, the following points should be kept in mind. आपने किसी भी पैराग्राफ का आंसर करने से पहले, क्वेश्चंस के आंसर करने से पहले अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है, सो दैट यू कैन गिव अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर आंसर्स. फर्स्ट वन इज़ मस्ट रीड द गिवन पैसेज एटलीस्ट 2 to 3 times. आपने 2 से 3 दफ़ा पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. अंडरलाइन द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड, और जो आपको रेलिवेंट आंसर्स लग रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड उनको आप अंडरलाइन कर लें या मार्क कर लें. थर्ड वन इज़ राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस कम्प्लीटली इन सिंपल लैंग्वेज. जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आपने आंसर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और मुकम्मल तौर पे देना है. लैंग्वेज शुड बी ग्रामेटिकल, प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी. ग्रामर का ख्याल बिल्कुल रखना है आपने. लेट सपोज क्वेश्चन में अगर डिड वगैरह आ जाता है देन यू हैव टू यूज़ सेकंड फॉर्म इन आंसर, एंड इफ़ देयर इज़
आई इन पैराग्राफ, तो आपने वो आंसर में आई नहीं लिखना, बल्कि यू हैव टू चेंज द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिफ्थ वन इज़ द आंसर शुड बी फ्रॉम द पैसेज, और आपने आंसर बिल्कुल पैसेज में से लेना है, खुद से नहीं लिखना। सिक्स वन इज़ आफ्टर गिविंग ऑल द आंसर्स रीड दैम वंस, जो आप सारे आंसर्स दे दें या मार्क कर लें, रीड दैम वंस अगेन। नाउ मूव टू आवर पैसेज। It's from your reader, chapter number 1, page number 3. You can see on your readers the beautiful garden. She was standing in a long, low hall. वो एक लंबे लो मीन्स थोड़ा सा नीचे की तरफ हॉल में खड़ी थी। There were lots of lights hanging from the ceiling, और वो छत से बहुत सारी लाइट्स लटक रही थी वहाँ पे। There were doors all round the hall, और उस हॉल में हर तरफ क्या थे, दरवाजे थे। एलिस ट्राई टू ओपन दैम, एलिस ने उनको खोलने की कोशिश की। दे वर ऑल लॉक्ड, वो सब के सब क्या थे, बंद थे। शी सॉ अ लिटिल ग्लास टेबल विथ 3 legs, फिर उसको एक ग्लास टेबल नज़र आती है जिसकी 3 टांगें होती हैं। देयर वॉज अ गोल्ड की ऑन इट, उसके ऊपर एक सोने की चाबी पड़ी होती है। देन शी नोटिस्ड अ लो कर्टन, फिर उसको एक स्मॉल छोटा सा कर्टन मीन्स पर्दा नज़र आता है। बिहाइंड इट वॉज अ लिटल डोर अबाउट 15 inches हाई, और उसके पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा होता है ऑलमोस्ट 15 inches हाई। शी ट्राइड द लिटिल गोल्ड की इन द लॉक, फिर वो गोल्ड की उस लॉक में लगाती है। एंड द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव some questions here and I have written answers also as an example, so that you can understand the way how to write its answers. The first one is, where was Alice standing? Alice कहाँ पे खड़ी थी? Now you can see its answer in the very first line. She was standing in a long, low hall. Next one is, what was hanging there? वहाँ पर क्या लटक रहा था? Its answer again you can see from the first line. There were lots of lights hanging from the ceiling. Third question is, what did Alice see there? Alice ने वहाँ पर क्या देखा? She saw a little glass table with 3 legs. Its answer is in the second line of the paragraph. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज बिहाइंड द लॉ कर्टन? उस पर्दे के पीछे क्या था? बिहाइंड इट वॉज अ लिटिल डोर अबाउट 15 inches हाई, वहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसकी 15 inches हाइट थी। यू कैन सी इट्स आंसर इज इन द फोर्थ लाइन। लास्ट वन क्वेश्चन इज, हाउ डिड द डोर ओपन? दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्ड की इन द लॉक, उसने वो चाबी लॉक में लगाई। द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुल गया। यू कैन सी इट्स आंसर इन द लास्ट लाइन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू आवर होमवर्क। लर्न कंप्लीट एक्सरसाइज, जो पहले हमने सारी एक्सरसाइज की है, यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट होमवर्क इज़ राइट वर्ड सेंटेंसेज एंड देयर डेफिनेशंस ऑन नोटबुक्स। आपने जो वर्ड सेंटेंसेज हैं और उनकी जो डेफिनेशंस हमने फर्स्ट पार्ट किया था वर्किंग विद वर्ड्स, यू हैव टू राइट इट ऑन योर नोटबुक्स। ऑल्सो डू गिवन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ऑन नोटबुक्स। ये जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज मैंने आपको दिया है, यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर नोटबुक्स। जो हमने पीछे किया है एज एन एग्जाम्पल, you have to write that also, and also this one as an exercise. This was all your homework. Till our next lecture, take good care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.